کا باقاعدہ آغاز کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے ملتان کا اچانک طوفانی دورہ کیا۔ وہ سب سے پہلے نشتر 2 ہسپتال پہنچے، جہاں میڈیا سے گفتگو کے بعد انہوں نے ملتان کے دیگر اسپتالوں کا وزٹ کیا۔ سید محسن نقوی نشتر اسپتال اور چلڈرن کمپلیکس بھی گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورہ ملتان کا مزید احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں شکیل سلطان کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی ملتان سمیت جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے متحرک۔ وزیر اعلیٰ ملتان میں نشتر 2 کا وزٹ کرنے کے بعد نشتر ہسپتال پہنچ گئے، جہاں انہوں نے مرمت کے کام کا جائزہ لیا اور تفصیلات لیں۔ انہوں نے نشتر ہسپتال میں ترقیاتی کام کی ایک شفٹ چلانے پر برہمی کا اظہار کیا اور 2 شفٹ لگا کر کام مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے مرمتی کام والے وارڈ میں پڑا نیا سامان دیکھ کر ایم ایس کی کلاس لے لی اور نئے سامان کو فوری کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیا۔ سید محسن رضا نقوی نے ہسپتال میں مریضوں سے بات بھی کی اور شکایات سن کر ایم ایس اور وائس چانسلر کو معاملات فوری حل کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نشتر ہسپتال جاتے ہوئے بھٹے سے دھواں نکلتے دیکھا تو بھٹے پر پہنچ گئے، سموگ کے تدارک کے لیے احکامات جاری کیے۔ سید محسن رضا نقوی نے چلڈرن کمپلیکس میں بھی زیر تعمیر وارڈز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ایمرجنسی سمیت ہسپتال کے مختلف وارڈز دیکھے اور مریضوں کے لواحقین سے علاج معالجے بارے پوچھا۔ وزیر اعلیٰ کو ہسپتال کی او پی ڈی بلاک کی اصلی حالت میں بحالی کے لیے کام بارے بریفنگ دی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے ایم ایس کو کام کی خود نگرانی کرنے کا حکم دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ سید محسن رضا نقوی نے دورہ ملتان کے بعد لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شکیل سلطان کے ہمراہ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا اچانک ملتان کا دورہ۔ سب سے پہلے نشتر 2 منصوبے کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نشتر 2 میں او پی ڈی اور دیگر وارڈز فنکشنل ہیں۔ 31 دسمبر تک منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی شام 5 بجے ملتان پہنچے اور سب سے پہلے نشتر 2 میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نشتر 2 میں او پی ڈی اور دیگر وارڈز فنکشنل ہیں۔ 31 دسمبر تک منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گنجائش سے زیادہ بچوں کے علاج پر ہسپتال انتظامیہ اور ڈاکٹرز قابل تحسین ہیں، اور اس کا ٹوٹل 5,70,000 اسکوائر فٹ جو ہے وہ کنسٹرکشن ایریا ہے، جو کنسٹرکشن مکمل ہے لیکن ابھی فنشنگ ہونی ہے۔ تقریباً 10 سے 11 ڈپارٹمنٹ ریڈی ہو گئے ہیں، کچھ اگلے ہفتے میں ہو جائیں گے، لیکن دسمبر میں جا کے اینڈ دسمبر میں جا کے ہماری کوشش پوری ہے کہ اس کو 100% آپریشنل کر دیں، پورا ہاسپٹل وتھ سٹاف وتھ ایوری تھنگ۔ نگران وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ اور متعلقہ ادارے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ بلوچستان اور سندھ سے بھی لوگ علاج کے لیے ملتان آ رہے ہیں۔ چند گھنٹوں میں بیڈز پر 3 کی بجائے 1 ہی بچہ ہوگا۔ اگر 1 ہی بچہ ہوگا تو باقی 2 بچے علاج سے محروم رہیں گے۔ چلڈرن ہاسپٹل میں ملتان کے بلوچستان سے سندھ سے لوگ آ رہے ہیں تو ہمیں اس کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ علاج کر رہے ہیں۔ ہم اس کی ایمرجنسی کو ریویمپ کر رہے ہیں، اس کی ایمرجنسی کو میکسیمم بیڈز پہ جتنی ہم گنجائش کر سکتے ہیں کر رہے ہیں۔ آلریڈی اس پہ کام شروع ہو گیا ہوا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم میکسیمم بچوں کو اکوموڈیٹ کریں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ چلڈرن ہسپتال کی ایمرجنسی دسمبر کے اختتام تک مکمل ہو جائے گی۔ ہسپتالوں کو ری ویمپ کرنے کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ کیمرامین عرفان کے ہمراہ بلال نیازی، ملتان۔ دوسری جانب سرکاری اسکولوں کے نجکاری اور لیو انکیشن میں ترمیم نامنظور۔ جنوبی پنجاب میں اساتذہ 10ویں روز بھی سڑکوں پر۔ علی پور، احمد پور شرکیہ، خانیوال، جام پور اور لیا میں احتجاج، حکومت مخالف نعرے بازی۔ جام پور میں میونسپل کمیٹی کے عملے نے بچوں کا امتحان لیا۔ لیا میں 1 ٹیچر معطل جبکہ 10 اساتذہ اور ہیڈ ٹیچرز کو شوکوز نوٹس جاری۔ مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ سرکاری اسکولوں کی نجکاری اور پینشن میں کٹوتی نامنظور۔ علی پور میں اساتذہ مطالبات کے حق میں 10ویں روز بھی سڑکوں پر ہیں۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی اور حکومت مخالف نعرے لگائے۔ جام پور میں لوکل گورنمنٹ کے عملے نے بچوں کا امتحان لیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ گرفتار اساتذہ کو فوری رہا کیا جائے۔ احمد پور شرکیہ میں اساتذہ کا احتجاج 10ویں روز بھی جاری رہا۔ مظاہرین میں خواتین اساتذہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ وہ حکومتی فیصلہ ہر صورت واپس کروائیں گے۔
खानेवाल के साथसा भी मुतालबात के हक में सड़कों पर हैं। मुजाहिरीन ने गवर्नमेंट कॉलेज में धरना दे दिया। साथसा का कहना था कि स्कूल बंद होने से तुलबा का तालीमी नुकसान हो रहा है, हुकूमत फौरी तौर पर मुतालबात तस्लीम करे। जामपुर में साथसा 10वें रोज भी हड़ताल पर, बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। 12वीं के इम्तिहान में लोकल गवर्नमेंट के अमले ने निगरानी के फराइज सर अंजाम दिए। लिया में स्कूल की बंदिश पर एक टीचर मुअत्तल, जबकि 10 असातिज़ा और हेड टीचर्स को शौकास जारी कर दिया गया। मुअत्तल उस्ताज़ा को एजुकेशन अफसरान के सामने पेश होकर जवाब दाखिल करने की हिदायत। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब में असातिज़ा की हड़ताल के बायस तदरीसी अमल बंद होने का मामला। तमाम सरकारी स्कूलों में कल से तदरीसी अमल शुरू कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता 9 रोज से असातिज़ा की जानिब से सरकारी स्कूलों में तदरीसी अमल का बायकॉट किया गया था। हफ्ता में एक रोज मुतालबात के हक में अलामती एहतजाज किया जाएगा। टीचर्स एंड हेड मास्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक कल से जनूबी पंजाब के तमाम स्कूलों में तदरीसी अमल बहाल हो जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब में असातिज़ा की हड़ताल के बायस तदरीसी अमल बंद होने का मामला। तमाम सरकारी स्कूलों में कल से तदरीसी अमल शुरू कर दिया जाएगा। रहीम यार खान के ताजरों ने कम होती हुई महंगाई को खुशाइंदा करार दे दिया। रुपए की कदर में बेहतरी और पेट्रोल की कम होती कीमतों ने महंगाई को रिवर्स गेयर लगा दिया। घी, दालें, चावल, आटा, मल्टी नेशनल कंपनियों की प्रोडक्ट्स, चाय की पत्ती की कीमत में 20% तक कमी हुई है। हुकूमती पॉलिसियों ने महंगाई के तूफान के आगे बंद बांध दिया। डॉलर की कदर में कमी हुई तो पेट्रोल की आसमान को छूती कीमतें भी गिरना शुरू हो गई। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत गरीब की पहुंच से बाहर होती अशिया जरूरिया की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। मार्केट में प्रीमियर घी 50 रुपए, मकामी घी 90 रुपए फी किलो सस्ता हो गया। चीनी की कीमत में 50 रुपए फी किलो कमी हो गई। दाल बाश, दाल मसूर, दाल चना और चावल की कीमतें 35% तक गिर गई हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट, साबुन, शैम्पू और चाय की पत्ती समेत तमाम मसनूआत 15% तक सस्ती हुई। जो यूनिलीवर और बाकी जो आइटम्स हैं, जो मल्टीनेशनल आइटम्स हैं, उनमें भी 10 से 15% जो है कमी हुई है। अगर हम एवरेज बात करते हैं तो 20% तकरीबन जो है कमी हो गई है ओवरऑल। और गरीब के बजट की बात करें तो उसको अगर मंथली ग्रॉसरी के बजट में 2 से 3 हज़ार रुपये का तकरीबन रिलीफ मिला है। हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत जखीरा अंदोज परेशान हैं। जखीरा की गई अशिया की कीमत कम होती कीमतों ने जखीरा अंदोजों को नुकसान पहुंचाया है। हुकूमत की तरफ से जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम। रेलवे स्टेशन की इंतजामिया की गफलत के बायस मुसाफिर ख्वार होने लगे। रेलवे स्टेशन पर सफाई का निज़ाम, सिक्योरिटी इंतजामात और इंफॉर्मेशन सेल बिल्कुल नाकाम। स्टेशन पर पहुंचने वाली ट्रेनें भी घंटों ताख़ीर का शिकार होने लगी। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन इंतजामिया की गफलत के बायस मुसाफिर ख्वार होने लगे। रेलवे स्टेशन पर सफाई का निज़ाम, सिक्योरिटी इंतजामात और इंफॉर्मेशन सेल बिल्कुल नाकाम है। स्टेशन पर पहुंचने वाली ट्रेनें भी घंटों ताखीर का शिकार होने लगी। यहाँ पे सिक्योरिटी का निज़ाम जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोई चेक नहीं कर रहा होता, आप जैसे मर्जी एंटर हो जाएं, जैसे मर्जी चले जाएं, ना प्रॉपर चेकिंग है ना कुछ। और ट्रेन के अंदर सफाई के बहुत बुरे हालात हैं कि हमें बैठना भी जो है ना बाज़ का मयूब लग रहा होता है कि यार कि किस तरह की जगहों पे बैठे हैं। मुसाफिरों का कहना था कि स्टेशन पर आते वक्त हमारी और हमारे सामान की चेकिंग भी नहीं की गई। स्टेशन पर खाने पीने के स्टॉल्स पर खुराक की क्वालिटी नाकिस है। स्टेशन पर खाने पीने की चीजें बाहर की निस्बत काफी महंगी भी हैं। जो एक मजदूर है 1000 रुपया कमाता है, उसका 20,000 बिल आता है, तो 10,000 में वो क्या करेगा? 4 हफ्ते की छुट्टियां हो जाती है उसको। ये नहीं उनको पता हुकूमत को कि गरीब क्या कर रहा है। गरीब को मारना तो सीधा रख के गोली मार दे। मुसाफिरों ने रेलवे स्टेशन पर सूरत हाल को बेहतर करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राणा बिलाल के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान। आपको बताएं, मुल्तान कचहरी चौक पर सड़क के दरमियान गाड़ियां खड़ी करना मामूल बन गया। सड़क के दरमियान खड़ी गाड़ियों ने शहरियों के मसाइल में इजाफा कर दिया। मुसाफिरों को कचहरी चौक से गुजरते वक्त इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मुल्तान कचहरी चौक पर सड़क के दरमियान खड़ी गाड़ियों से शहरियों के मसाइल में इजाफा। मुसाफिरों को कचहरी चौक से गुजरते वक्त इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सड़क के इतराफ में गाड़ियां खड़ी होने से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। पैदल चलने वाले को भी मुश्किल है और जगह तो है नहीं, 2 गाड़ियां भी नहीं गुजरती।
ये साइड में दोनों साइड पे खड़ी हैं, हर चीज़ का मसाइल है। शहरी कहते हैं कि स्कूल कॉलेजेस के तलबा और इमरजेंसी में गुजरने वाली गाड़ियां कचहरी चौक पर फंस जाती हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि मुतलका हुकाम कचहरी चौक पर कायम पार्किंग को खत्म करें। जेर तमीर पार्किंग प्लाजा के मंसूबा पर काम मुकम्मल किया जाए। कचहरी चौक से लेके 7 नंबर चुंगी तक जो है रोड ब्लॉक रहता है, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। इसके लिए मुतबादल जगह फराहम की गई थी, लेकिन अब उस पर आप बता रहे हैं कि काम रुक गया है। सैकड़ों गाड़ियां जो सड़क के बीचों बीच खड़ी हैं, मोटरसाइकिल पैदल चलने वालों को भी जो है मुश्किलात का सामना। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान सैयद अली अल्ताफ गिलानी का इस हवाले से कहना था कि कचहरी के अंदर जेर तमीर पार्किंग प्लाजा पर काम रुका हुआ है। अगर फंड्स जारी हो जाएं तो पार्किंग प्लाजा जल्द तमीर हो सकता है। कैमरामैन शोआब के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बहावल नगर के अहदेदार और कारकुनान इंतहाई पुरजोश हैं। कारकुनान डिविजनल सेक्रेटरी इतलात की रिहाइशगाह पर तैयारियों में मसरूफ है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे कासिम अली शेख से। जी कासिम। जब बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबरा और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, तो फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल के लिए बहावन नगर के जो कारकुनान हैं, ओहदेदारान हैं, वो भी इंतहाई पुरजोश हैं। PP 238 और PP 240 से उम्मीदवार और डिवीज़नल सेक्रेटरी इतलात पीर अदनान असगर बोदला की जो है क़यादत में सुबह जो है वो काफ़िला रवाना होगा, जिसकी तैयारियाँ जो मुकम्मल कर ली गई। कितनी बड़ी तादाद में जो है वो कारकुन लाहौर जाएंगे और कितने जोश है, तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डिवीजनल सेक्रेटरी इतलात पीर अदनान असगर बोदला। उनसे बात करते हैं। पीर साहब बताइएगा कितने पुरजोश हैं और कितनी बड़ी तादाद में जा रहे हैं? आपने बाहर देख तो लिया कितने पुरजोश हैं। वैसे तो मेरी 23 साल से पार्टी में वाबस्तगी है, तो 23 साल से अब तक के सफ़र में मैं हल्फन कह सकता हूं कि मैंने ऐसा जोशो जज्बा, मैं कराची था 2 दिन पहले, बहावलपुर था, मुल्तान था, ऐसा जोशो जज्बा मैंने नहीं देखा। तो इसी तरह जैसे मैं एक उम्मीदवार हूं, तो एक कैंडिडेट के ज़िम्मे उन्होंने 200 लोग लगाए हैं, तो मुझे 200 कहे, तो मैंने कहा बस इतने थोड़े बंदे, तो मैंने 400 लोग कर लिए। तो हमारा जो टारगेट था मीनार पाकिस्तान को भरने का, अगर वो 5 लाख था, तो मुझे लग रहा है कि सुबह पाकिस्तान पूरे के लिए उसको हम कहेंगे इज्तिमा पाकिस्तान का, इस पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। और अगर 5 लाख का टारगेट था, तो सुबह मिलियन इज्तिमा होगा जो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। और यहाँ से हम आलमदार लाले का जो MNA हमारे उम्मीदवार दोबारा इंशाल्लाह बनेंगे, और डिवीजनल सदर जो नूरुल हसन तनवीर है, उनकी क़यादत में हम ज़िला बहावल नगर जो भूखा पतन है वहाँ से रवाना हो गए। यहाँ मेरे घर पे सुबह नाश्ता होगा, हमने नाश्ते का एहतमाम किया है। पत्तों की में हमने खाने का एहतमाम किया है, उसके बाद वापसी पे फिर हमने खाने का एहतमाम किया है। ऐसा वेल ऑर्गेनाइज्ड आपने इवेंट कभी मेरे ख्याल में अपने जो सहाफ़ती सफ़र है उसमें कभी नहीं देखा होगा। अच्छा पीर साहब, आप ये भी बताइएगा, आप अपने कायद से मोहब्बत का एक मुनफरद जो है वो इजहार कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये जो शर्ट है ये आपने जो है अपने कायद से मोहब्बत के लिए यहाँ बनाई है, तो इसमें किस किस की तस्वीर है और ये आइडिया आपको कैसे आया? ये शेख साहब उन्होंने नहीं कहा पार्टी ने कि आप बनाएं, पार्टी ने तो कहा था कि आपने बंदे लेकर पहुंचना है, बाकी सब कुछ पार्टी करेगी। लेकिन ये मेरी मोहब्बत है कि ये आप देख रहे हैं कायद की तस्वीर। उसके बाद ये मैंने इसके ऊपर जो है अपने सदर जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म है, और उसके बाद कायद की जो बेटी है उम्मीद सहर मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा, और जो हमारे MNA है आलमदार लाले का डिवीजनल सदर, इनकी तस्वीर लगाई हैं। ये मैंने अपनी जेब से किया है, अपनी खुशी से किया है। जी बिल्कुल, तमाम कारकुनान जो है वो इंतहाई पुरजोश हैं, और कल सुबह जो है पीर अदनान असगर बोदला की क़यादत में यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में काफ़िला जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रवाना होगा। बड़े पुरजोश हैं, तैयारियाँ जो है मुकम्मल कर ली गई हैं, और बेचैन हैं कि कल अपने जो कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी जो है वो इस्तकबाल के लिए यहाँ से लाहौर पहुँचे। जी कासिम, बहुत शुक्रिया आपका। एमरिसन यूनिवर्सिटी मुल्तान में लैपटॉप स्कीम के तहत तकरीब का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमजान ने तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद रमजान का कहना था कि लैपटॉप हासिल करने वाले तालिबा को मुबारकबाद पेश करते हैं। एमरिसन यूनिवर्सिटी मुल्तान को 220 मेरिट लैपटॉप मिलेंगे। तलबा को चाहे अपने लिए लैपटॉप के जरिए ऑनलाइन रोजगार के मौका भी पैदा करें। तकरीब में यूनिवर्सिटी के तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती बेमिसाल। सऊदीया की जानिब से भिजवाया गया आला किस्म की खजूरों का तोहफा मुस्तहिक अफराद में तकसीम। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान उस्मान शेख का कहना था कि सऊदी अरब का तोहफा पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है।
सऊदी अरब की जानिब से भिजवाए गए खजूरों के 472 कार्टन मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू के स्वीट होम और खवातीन सेंटर में तकसीम कर दिए गए। पाकिस्तान बैतुल माल को सऊदी हुकूमत की तरफ से जिला मुजफ्फरगढ़ के प्रोजेक्ट्स, वेमेन एम्पावरमेंट सेंटर, SRC और पाकिस्तान स्वीट होम के जो ट्रेनीज बच्चे हैं उनके लिए 472 पैकेज दिए गए थे। हमने उन तीनों प्रोजेक्ट्स में आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और 472 खानदान जिनके बच्चे हमारे इन तीन इदारों में पढ़ते थे उन सबको वो सऊदी खजूर जो हुकूमत सऊदीया की तरफ से तोहफा दिया गया था हमारे पाकिस्तान बैतुल माल के MD आमिर फिदा राचा साहब की तरफ से, वो हमने तकसीम कर दिए। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान उस्मान शेख ने कहा कि सऊदी हुकूमत की जानिब से खजूरों का तोहफा गरीब आवाम से मोहब्बत और इंसानी हमदर्दी का मुंह बोलता सबूत है। आज इस तरह बैतुल माल के ज़रिए तमाम तकरीब थी जिसमें बतौर मेहमान ख़ुसूसी मदऊ किया और उसमें जो उनकी वालदा आई उनको ये अमानत सऊदी शाह फरमारवा शाह वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से पहुंचाई। पाकिस्तान बैतुल माल ने स्वीट होम में रजिस्टर्ड 100 बच्चों के वालिदैन में खजूरों के कार्टन तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मुलाना, रोही, कोट अद्दू। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कैंसर से आगाही का आलमी दिन मनाया गया। जहानिया में महकमे पॉपुलेशन वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आगाही फ्राहम करने के लिए सेमिनार मुनक्किद किया गया। पाकिस्तान में कैंसर के मरीजों की तादाद आए रोज बढ़ रही है। कैंसर इंतहाई खतरनाक और जानलेवा मर्ज है। कैंसर के आलमी दिन पर महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर के ज़रिए एहतमाम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर राव राशिद हफीज, डॉक्टर अमारा और डॉक्टर आमना सदफ ने शुरा को ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए आगाही फराहम की। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर राव राशिद हफीज का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए तमाम कॉलेजेस में आगाही फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर साल 40,000 खवातीन छाती के कैंसर में मुब्तला होकर मौत के मुंह में चली जाती हैं। जो बीमारी है ये बहुत आम हो चुकी है और एशिया में हमारा जो पाकिस्तान है उसका 1 नंबर है इसमें। यानी हमारे यहाँ पे 9 औरतों में से 1 औरत ऐसी है जिसको ये इशू है, तो इतना यानी इसमें इजाफा हो गया है। कैंसर एक ऐसा मर्ज है, खासतौर ब्रेस्ट कैंसर, जिससे हम बचाव मुमकिन नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम इससे बच सकते हैं, लेकिन अगर आपने इब्तदाई स्टेज के ऊपर इसको तशखीस कर ली है और मर्ज का पता कर लिया है तो उसका 100% इलाज मुमकिन है और एक इंसानी जान बचाई जा सकती है। महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर के हुकाम ने सेमिनार के दौरान खवातीन को बताया कि ब्रेस्ट कैंसर एक खतरनाक मर्ज है। इससे बचाव के लिए बर वक्त डॉक्टर से मुआयना करवाएं। बर वक्त इलाज से इस मर्ज से छुटकारा पाया जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।